चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बेटे आपका, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड अडेप्ट फॉर प्यूरिफाइंग द पब्लिक वाटर सप्लाई। ठीक है, विच मेथड अडेप्टेड फॉर प्यूरिफाइंग द पब्लिक वाटर सप्लाई। तो स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, एडेड विद कोगुलेशन एंड डिसइंफेक्शंस। तो दोस्तों इसमें तीनों ही आ जाएंगे, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिसइंफेक्शंस। तो इसमें ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्या है। तो बात करते हैं इसके यूनिट ऑपरेशंस इन वाटर ट्रीटमेंट जो कि इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर। पहला होता है स्क्रीनिंग, दूसरा होता है एरिएशन, तीसरा होता है फ्लोकुलेशन, चौथा होता है फिल्ट्रेशन, पांचवा होता है डिसइंफेक्शन, फिर आता है सॉफ्टनिंग, फिर आता है डिफराइजेशन और उसके बाद में डिफ्लोरिडेशन। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, स्क्रीनिंग, एरिएशन, फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग एंड डिस्फेराइजेशन एंड डिफ्लोरिडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर मेनी ट्रीटमेंट प्रोसेस अवेलेबल बट टिपिकली रो वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। नेक्स्ट हम समझते हैं इंटेक ऑफ रो वाटर। नेचुरली एंड अनट्रीटेड रो वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट comes from any source that can be naturally or man-made, such as river, lake, pond, ocean, and streams. When a plant draw water from the surface, they pull it through a screen to eliminate the larger objects. नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग आप जानते ही स्क्रीन क्या होती है। Screening is the first unit of operations of the water treatment plant. Screening is process to remove the big floating particle having a size lies between the 10 mm to 150 mm, depending upon the types of screen used in the screening process. In this process, generally paper, wooden pieces, plastic bottle, glass bottle are removed. Screening is done with the help of the device is known as screen. नेक्स्ट आता है कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या होता है, व्हेन वेरियस केमिकल्स आर एडेड टू रिमूव लार्ज एंड बल्की सस्पेंडेड सॉलिड इज कॉल्ड कोगुलेशन। दिस प्रोसेस स्टार्ट विद एडिंग स्पेसिफिक केमिकल्स एंड टेक आउट ऑल फाइनर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर by combining them and converting them into a heavier particles that lead to easy settling in the water. Next आता है flocculation. After completion of the coagulation process, the flocculation process starts where the coagulant particles are slow mixed, stirred together and create visibly set-level particles. Next are the sedimentation. This process in which solid particles settle down and lead to the formation of sludge blanket. After the particles of that solid are mixed and the sludge is pumped out from the bottom into the dewatering or sludge handling operation. Then the dewatering process takes place in which all the water is taken out from the sludge with a filter press. Mostly water from this process is reused, added to a clarifiers. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आता है इसमें फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन is a process in which water overflow into gravity sand filter, which filter cover big area because which include finely crushed silica sand and jagged edges as they are kept around 3 to 5 feet of the sand. The sand is typically used in the filter at a depth that is packed tightly. उसके बाद आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिसइंफेक्शन मीन द रिमूवल ऑफ द डीएक्टिवेशन और किलिंग ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म are destroyed or deactive, resulting in the termination of the growth and reproduction. When the microorganisms are not removed from drinking water uses will cause people to fall ill. Sterilization is a process related to disinfection. However, during the sterilization process, all present microorganisms are killed and both harmful and harmless microorganisms are. Generally, chlorination is done for the disinfection. अब समझते हैं according to Stokes law. According to the Stokes law, if the diameter is less than 0.1 mm, then settling velocity of spherical particle is directly proportional to the d square. समझ लेते हैं स्टोक्स लॉ को।
इसके अजम्पशंस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। पहला अजम्पशन होता है, इट इज़ अज्यूम दैट पार्टिकल फ्लो डिस्क्रीट पार्टिकल मीन्स ग्रेन ऑफ डिफरेंट साइज fall through a liquid at a different velocity। दूसरा आता है particles are assumed spherical in shape। तीसरा आता है मीडियम इज assumed infinite। जो मीडियम होता है वो इनफाइनाइट होता है। पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम 0.2 mm to 0.0002 mm। सेटलिंग वेलोसिटी फॉर द डिस्क्रीट पार्टिकल फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, बी एस इज इक्वल्स टू जी डी स्क्वायर एस माइनस वन डिवाइड बाई 18 म्यू। यहाँ वैसे जी लिखते हैं, जी -1 होता है। एस इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल, डी इज द डायमीटर ऑफ पार्टिकल, बी इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं। What is the settling velocity of a discrete particle in water under condition when Reynolds number is less than 0.5? Take the diameter and specific gravity of the particle. Diameter and specific gravity of the particle 5 into 10 की power -3 and specific gravity 2.65 respectively, and kinematic viscosity of water at 20 degree centigrade is 1.01 into 10 की power -2 centimeter स्क्वायर पर सेकेंड एंड जी इज 9.81। तो आपको क्या निकालना है, सेटलिंग वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है ये, सेटलिंग वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है इसने, इस आपको दिया है इसने रेनॉल्ड नंबर दे रखे हैं, वो कितना है, लेस देन 0.5। ठीक है। उसके बाद में जो पार्टिकल का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 की पावर -3। उसके बाद में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी है वो दे रखी है 2.65। म्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.01 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जी आपको पता ही है 9.81। इसको सॉल्व करते हैं। सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है GS -1 GD स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ज़्यादा बड़ा। 9.81 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर इंटू GS कितना दे रखा, 2 इसको डायरेक्टली लिख देते हैं ना 1.65, फिर भी लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई 18 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। एक मिनट कैलकुलेटर ले लेता हूँ। 9.81 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 की पावर 2 इंटू 2.6 -1 डिवाइड बाई 18 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में ये आ गया आपके पास में बी एस इज इक्वल्स टू 2.22 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है ना, 2.2। अच्छा, सेंटीमीटर में दे रखा है यहाँ पे, तो उसको सेंटीमीटर में बदल दो आप। बी एस इज इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, एक और लगा दो इसमें यार, क्या जा रहा है, 0.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन of pressure filter as compared to the rapid gravity filter is about the rate of filtration of pressure filter as compared to rapid gravity filter is about rapid gravity filter about कितना हो जाएगा 2 to 5 टाइम होता है. द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर का कंपेयर कर रहा है किससे, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से, तो ऑब्वियसली 2 to 5 टाइम होता है. चलो इसको एक्सप्लेनेशन समझ ले, थोड़ा सा कंसेप्ट. प्रेशर फिल्टर की बात कर रहे हैं. द डिफरेंस बिटवीन द रैपिड सैंड फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर. तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, द फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट अंडर द ग्रेविटी, किसके अंदर, प्रेशर फिल्टर के अंदर. दिस इम्प्लाई दैट द वाटर इनसाइड द क्लोज्ड चेम्बर इज अंडर प्रेशर. द डायमीटर ऑफ टैंक इज 1.5 से लेके 3 मीटर होता है, किसका, प्रेशर फिल्टर का. एंड द हाइट एंड द लेंथ इज 3.5 और 8 मीटर. जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 8 मीटर, और जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 3.5 मीटर, किसकी, प्रेशर फिल्टर की. ऑपरेशन इज द सेम एज द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, है ना. प्रेशर फिल्टर के ऑपरेशन वैसे ही होते हैं जैसे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के होते हैं. उसके बाद में बात करते हैं प्रेशर फिल्टर इज लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू रैपिड ग्रेविटी फिल्टर. रैपिड ग्रेविटी फिल्टर से जो प्रेशर फिल्टर होते हैं वो कम एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि रैपिड जो प्रेशर फिल्टर होता है, द प्रेशर फिल्टर इज लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, है ना. क्योंकि ग्रेविटी फिल्टर के अंदर जो वेलोसिटी होती है ना, जो पर्कुलेशन जो होता है वो कम होता है कम स्पीड से होता है, और जो प्रेशर फिल्टर होता है उसके ज़्यादा स्पीड से होता है ना. तो उसका जो मैकेनिज्म है वो कम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, किसके अंदर, प्रेशर फिल्टर के लिए, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम होती है. रिमूविंग बैक्टीरिया एंड टर्बिडिटी, दो चीज़ों के अंदर जो एफिशिएंसी, बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए और टर्बिडिटी रिमूव करने के लिए प्रेशर फिल्टर की. रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 6000 से लेके 15000 लीटर मीटर स्क्वायर पर आवर्स होता है. और कंपैरिजन है वो भी पढ़ लेते हैं. स्लो सैंड फिल्टर बिटवीन रैपिड सैंड फिल्टर. प्री ट्रीटमेंट की बात करते हैं अगर स्लो सैंड फिल्टर के अंदर, तो एफ्लुएंट फ्रॉम द प्लेन सेडिमेंटेशन कोगुलेशन नॉट रिक्वायर्ड होता है. स्लो सैंड फिल्टर के अंदर क्या क्या होता है, सेडिमेंटेशन और कोगुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होता. अरे पता है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डूइंग समथिंग, रिकॉर्ड हो रहा है ये. रैपिड की बात करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में. तो कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन इज मस्ट. जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है ना, इसके अंदर कोगुलेशन होता है, फ्लोकुलेशन होता है और सेडिमेंटेशन जरूरी होता है. प्री ट्रीटमेंट की बातें चल रही हैं, ठीक है. स्लो सैंड फिल्टर के अंदर जो एफ्लुएंट फ्रॉम प्लेन सेडिमेंटेशन कोगुलेशन नॉट रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट चलते हैं फिल्टर सैंड के बारे में. स्लो सैंड के अंदर जो D10 होता है, ये पार्टिकल साइज होती है वो होती है 0.2 से लेके 0.4 mm के बीच में, ठीक है. और जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी होती है किसकी, फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर की, वो कितनी होती है, 1.8 से लेके 3 तक होती है. और जो ग्रेवल की थिकनेस होती है वो 30 से लेके 75 सेंटीमीटर थिक होती है. जो ग्रेवल की जो लेयर होती है 30 से लेके 75 mm थिक होती है. रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो इसमें जो D10 पार्टिकल साइज होती है वो 0.35 से लेके 0.55 के बीच में होती है. इसका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है वो होता है 1.2 से लेके 1.8 के बीच में. तो यूनिफॉर्मिटी आपको समझ में आ गई. स्लो सैंड फिल्टर के अंदर 1.8 से लेके 3 होती है, और रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर 1.2 से लेके 1.8 तक होती है. और इसमें जो ग्रेवल जो होती है ना, इसकी लेयर 60 से लेके 90 सेंटीमीटर तक थिक होती है. उसके बाद बात करते हैं साइज ऑफ ईच यूनिट. तो स्लो सैंड फिल्टर जो होता है उसकी लार्ज होती हैं, जैसे लार्ज यूनिट होती हैं जिसकी साइज होती है 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर के बीच में. अब आते हैं एन एरिया फ्रॉम 100 टू लेके 2000 मीटर स्क्वायर तक होता है. किसका एरिया, स्लो सैंड फिल्टर का एरिया. अब बात करते हैं लेस फ्लेक्सिबल इन शॉक लोडिंग. ये शॉक लोडिंग के अंदर लेस फ्लेक्सिबल होता है. अब बात करते हैं रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के अंदर, जो 5 मीटर से लेके 8 मीटर के बीच में होती है, स्मॉल साइज होती है. इसका एरिया जो होता है लेस देन 100 मीटर स्क्वायर होता है.
और ये मोर फ्लेक्सिबल होता है ऑन स्ट्रोक लोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, किसकी, स्लो सैंड फिल्टर की, जो होती है 100 से लेके 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो रैपिड सैंड फिल्टर की होती है वो 3000 से लेके 6000 लीटर पर आवर मीटर स्क्वायर होती है, किसकी, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की, सॉरी रैपिड सैंड फिल्टर। या अब बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में। ये वेरी एफिशिएंट होती है इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया बट लेस इफेक्टिव रिमूवल ऑफ कलर्स। रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो ये लेस एफिशिएंट होता है इन बैक्टीरिया, 80 से 90% तक ये रिमूव कर पाता है, और वेरी एफिशिएंट होता है कलर को रिमूव करने के लिए। कौन सा, रैपिड सैंड फिल्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट में, बात करते हैं इसके पोस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। पोस्ट ट्रीटमेंट स्लो सैंड फिल्टर के अंदर डिसइंफेक्शन इज नॉट मस्ट, ऑलमोस्ट प्योर वाटर वाज ऑब्टेंड। इसके अंदर डिसइंफेक्शन ज़रूरत नहीं है इसकी, प्योर वाटर ही इसमें ऑब्टेंड होता है। इसकी जो टर्बिडिटी रिमूवल होता है उसका जो अप टू जो लेवल होता है वो होता है 50 ppm के अंदर। और डिसइंफेक्शन इसे मस्ट किसके अंदर, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के अंदर, या रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर टर्बिडिटी अप टू 35 ppm होती है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ क्लीनिंग के बारे में कि मेथड्स ऑफ क्लीनिंग क्या होती है। स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग द टॉप 1.5 से लेके 3 सेंटीमीटर थिक लेयर एंड वॉशिंग डाउन विद हाउसेस, ठीक है। स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग द टॉप लेयर 1.5 से लेके 3 सेंटीमीटर तक थिक लेयर एंड वॉशिंग डाउन विद हाउसेस। अब बात करते हैं इसकी किसकी, रैपिड सैंड फिल्टर की, तो बैक वॉशिंग और विदाउट कंप्रेशर एयर। नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटी ऑफ वॉश वाटर रिक्वायर्ड, तो इसके अंदर 0.2 से लेके 0.6% ऑफ टोटल फिल्टर्ड वाटर इज रिक्वायर्ड इन एवरी 1 से 3 मंथ। रैपिड के अंदर बात करते हैं तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ टोटल फिल्टर्ड वाटर रिक्वायर्ड इन एवरी 1 to 3 मंथ इज 1 to 5%, इसमें 0.2 से लेके 0.6%, तो मतलब इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो स्लो सेंट के अंदर 100 से लेकर 200 होता है, रैपिड के अंदर 3000 से लेकर 6000 होता है, प्रेशर के अंदर जो होता है 6000 से लेकर 15000 के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर इनका ऑर्डर समझे तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर फिल्टर के अंदर होता है, उसके बाद आता है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, और उसके बाद आता है स्लो सेंट फिल्टर। सो नेक्स्ट चलता है, the various types of water demand in which the city may have or may be broken down into which of following classes. The various types of water demand which a city may have or may be broken down into which of the following. The domestic water demand, industrial water demand and demand for the public uses. तो बिल्कुल सही है, इसमें तीनों ही आएंगे, तीनों ही ब्रेक डाउन हो सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड सही है, तीनों ही है, एक बार और देख लें, तीनों ही आएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है इसमें। द वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड फॉर ए टाउन और ए सिटी मे बी डिलीवर्ड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। फर्स्ट आता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। दिस इंक्लूड्स द वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर यूज इन प्राइवेट रेजिडेंस, अपार्टमेंट हाउसेज, etc for the drinking, cooking, bathing, washing clothes and cleaning houses. The amount of domestic water demand is depends upon the living conditions of the consumers. Next आता है domestic water demand generally amount to about 40 to 60% of the total demand. जो domestic water demand होता है वो generally amount to be about 40 to 60% of the total water demand. दूसरा आता है commercial and industrial water demand. This includes the water demand of commercial and other establishments such as office, hospital, hotel, and it coincides with 20 to 25% of the total water consumption. It can be as a low 40 LPCD and can be as a high 400 LCPD. Next are the demand for the public uses. This include the
quantity of water required for the civic or public utility purpose such as watering public park, and it usually consider 5 to 10% किसके अंदर डिमांड ऑफ पब्लिक यूज 5 to 10% ऑफ द टोटल वाटर कंजम्पशन। उसके बाद मतलब फायर डिमांड, इट इज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द फायर फाइटिंग पर्पज इज टेकन एज लो एज पॉसिबल 1 लीटर पर कैपिटा डिमांड। उसके बाद माता लॉसेस एंड वेस्ट ऑफ द वाटर। द वाटर इन दिस कैटेगरी समटाइम्स टर्म्ड unaccounted for the water. This include the water lost due to the leakage in mains, valves and other fittings, worn or damaged meters. It can take 5 to 10% of the total water consumptions. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। In a big city having populations of the 5 lakh, if 6 moderate fires each of 3 hours break out in a day, what is the approximate amount of water required per person per day? Assume 3 jet streams simultaneously throwing the water from hydrant with discharge of 1100 liter minute per streams. तो इसको सॉल्व करते हैं अपन को क्या क्या दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखी है कितनी 50 लाख, ठीक है, मतलब 5 into 10⁶। तो डिस्चार्ज फ्रॉम द जेट है वो कितना है, डिस्चार्ज फ्रॉम जेट 1100 लीटर मिनट ऑफ द स्ट्रीम्स, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ जेट कितने, नंबर ऑफ जेट है आपके पास में दोस्तों 3। तो अब निकालते हैं टोटल डिस्चार्ज। तो टोटल डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, जितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों जेट के अंदर। तो 11 into 3 करेंगे तो अपने पास में आ जाएंगे 3300, 11×3 = 33 लीटर पर मिनट। एक मिनट में इतना पानी जेट से डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब टोटल जेट से। अब बात करते हैं वाटर रिक्वायर्ड एट ईच लोकेशन। तो ये क्या होगा 33 कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। तो 3300 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने अगर इसको लीटर और 60 मिनट से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 66 into 6 कितना होता है 3966। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3300 into 3 into 60, तो ये हो जाएगा 594,000 लीटर। अब कितनी टोटल इन बिग सिटी पॉपुलेशन 6 मॉडरेट फायर एंड ईच at 3 hours breakdown of the out in the city in a day, ठीक है। तो टोटल लोकेशंस कितनी है इसकी 6 लोकेशन है। तो अब टोटल वाटर कितना रिक्वायर्ड होएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 594,000 into 6, तो ये हो जाएगा 1 2 3 6 चौको 24 2 54 और 4 54 2 56 30 और 5 35, नहीं 3 आएगा 5 आएगा, इस जगह पे 3 आएगा 3 5 6 4 1 000, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन।
ठीक है, तो एक आदमी को कितनी वाटर रिक्वायर्ड पड़ेगी? तो ये हो जाएगा आपके पास में 3.564 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 50 लाख पॉपुलेशन है, तो हमने कितना लिखा है इसको, यहाँ लिख देंगे 5 इंटू 10⁶, गायब कर देंगे और फिर इसको कितना आएगा ये 3.564 डिवाइड बाई 5, तो 0.712 लीटर आएगा, या लेस देन 1 मान लेंगे इसको। हाँ, तो हो गया ना, लेस देन 1 लीटर। नेक्स्ट चलते हैं। For water supply scheme design of a town or a city, the suitable methods of estimating future population by the end of design period. For water supply scheme design of a town or a city, the suitable method for estimating future population. फ्यूचर पॉपुलेशन के कौन सा आएगा? इंक्रीजिंग रेट मेथड नहीं आएगा, डिक्रीजिंग नहीं आएगा। एक्सपोनेंशियल कर्व मेथड यूज होता है किसके लिए? एस्टिमेटिंग ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए। इसका भी एक बार रिवीजन मार देते हैं सारी चीज़ों का। Various methods for population forecasting as suitable for the cities considering the growth pattern and are follow as. पहला आता अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड की बात करते हैं। इन दिस मेथड अज्यूम दैट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। अर्थमेटिकल इंक्रीज के अंदर क्या होता है कि जो इंक्रीज होती है वो किससे होती है? कांस्टेंट रेट से होती है। दिस मेथड सूटेबल फॉर द लार्ज एंड ओल्ड सिटीज विद कंसिडरेबल डेवलपमेंट। लार्ज और ओल्ड सिटीज़ के लिए किसका यूज होता है? अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का। उसके बाद में आता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव मेथड। इन दिस मेथड द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड्स टू डिकेड इज अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इस मेथड के अंदर जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है फ्रॉम डिकेड टू डिकेड, ये क्या होता है कि कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। जो डिकेड टू डिकेड पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो कांस्टेंट होती हैं किसके अंदर? ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड के अंदर। दिस मेथड गिव हायर वैल्यूज एंड हैंस शुड बी अप्लाइड फॉर यंग एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटीज बट ओनली फॉर ए फ्यू डिकेड्स। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसके अंदर क्या होता है? दिस मेथड इज मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड एंड इट इज सुटेबल फॉर एवरेज साइज टाउन अंडर द नॉर्मल कंडीशन where the growth rate is found to be increasing order. Next आता है exponential curve method. It is suitable method for estimating the future population by the end of the design periods of the water supply scheme for a town or a city. Next, which one of the following is not a factor affecting losses and water in the water supply scheme? मीटरिंग नहीं होगा इसका आंसर। अनऑथराइज्ड कनेक्शन नहीं, ये भी होगा मतलब है ना। वाटर डिमांड नहीं होगा। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हाँ होगा। फैक्टर अफेक्टिंग लॉसेज एंड बेस्ट, मीटरिंग होता है, अनऑथराइज्ड कनेक्शंस होते हैं और प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। वाटर डिमांड नहीं होती, ये एक अलग चीज़ है, समझ लेते हैं। द वेरियस फैक्टर ऑन विच द वाटर लॉसेस डिपेंड्स ऑन द वाटर टाइट जॉइंट, लूज जॉइंट लीड टू द वाटर लीकेज। उसके बाद आता प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर सप्लाई अंडर हाई प्रेशर हैज़ हायर लॉस एज कम्पेयर्ड to the lower pressure system of water. Next आता system of supply. Intermediate water supply has more losses as compared to the continuous water supply. फोर्थ नंबर पर आता मीटरिंग। पाँचवें नंबर पर